Commemorate the centenary celebrations of the sculpture depict the cradle of life, conducted by Bhavatosh Subha and is a dedication. For the Honourable Union Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Shri Prakash Javadekar. Shri Javadekar is also being presented with the Senapati Shivaji Maharaj Declaration for Forest Conservation, which is important for national security and environment preservation. Species belong to other countries. The next book service by ZSI in exploration and inventorization of Indian fauna. Dr. Singh has also been involved with capacity building in taxonomy, being the coordinator of the All India Coordinated Project on Taxonomy of Lichens and Bryophytes. Dr. Singh has also shown excellence in taxonomic researches on other groups of plants and well, and published Flora of Mizoram, volumes 1 and 2, edited the 5th volume of Floristic Diversity of India. पश्चिम बंगाल के पर्यावरण मंत्री और कलकत्ता के मेयर, शायद ही देश में ऐसा कोई होगा कि जो राज्य में मंत्री भी है और मेयर भी है, ये उनकी लोकप्रियता दर्शाती है। शोभन चैटर्जी जी इस संस्था के डायरेक्टर, मैंने उनको बहुत दौड़ाया अभी कि कार्यक्रम समय पे हो। तो कैलाश जी हमारे साथ अभी तक काम करते थे और झेड़े साहब पे जिनका सही दिल से प्यार है और पश्चिम बंगाल केडर के भी है। तो हेम पांडे जी अभी खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव बने हैं, लेकिन जब झेड़े साहब का 100 इयर्स का कार्यक्रम है तो उनको रहा नहीं गया, वो आ गए। उनको भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अमिता प्रसाद जी जो अभी नई एडिशनल सेक्रेटरी है, जो काम हेम पांडे जी देखते थे वो अब वो देखेगी। और सभी फॉर्मर डायरेक्टर्स जिनको हमने सम्मान किया, जो जानकी अम्बल अवार्ड के विनर्स है उनका सम्मान किया, सारे फैकल्टीज और झेड़े साहब के सारे कर्मचारी, आपको 100 साल की 100 बार बधाई देता हूं। And therefore we are today here on the 1st July and I'm happy, and again once again I congratulate the institute. I congratulate all the former directors who built this institute, because I always believe that such institutes of national importance are real treasure of the country, because such institutes actually give and develop knowledge. These are the knowledge centers, and these are very important in the development of any country. And such institutes who thought of such institute 100 years ago and formed it, we must also remember him. प्रकृति में इतना पड़ा है जीव वैविधता, the biodiversity is so large. Our country is 17% of the human population of the world. We have 17% of the cattle population as well, and we have only 2.5% of the world's land mass, but still we have 8% of species of biodiversity. That is the fundamental biodiversity nature of our country. This is the unity in diversity. मैं आपको फिर से बधाई देना चाहता हूं कि आज तक 4000 से ज्यादा प्रजातियों को आपने ढूंढ निकाला है, रिकॉर्ड किया है, और पिछले साल 70 नई प्रजातियों का पूरा रिकॉर्ड किया है। और सारे ज्ञान का सबसे बड़ी बधाई है कि एक सारे ज्ञान का
एक लाइब्रेरी कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ मोर देन 4,50,000 पेजेस. 4,50,000 pages are digitized, and now it is on website. It is freely downloadable. So this information, this is the treasure of 100 years of labor put in by all the scientists, faculties, students and everybody who participated in this. एक यज्ञ होता है ज्ञान का भी, और इस यज्ञ को जिन्होंने 100 साल काम किया, उनकी जो पूंजी है, उनका जो ज्ञान का भंडार है, वो सब आज डिजिटल हो गया है. सबको मिलेगा, देश भर में मिलेगा, दुनिया भर में मिलेगा. लाइब्रेरी से लिंक कर देंगे ताकि ज़ूलॉजी और बॉटनी के जो हमारे बीएसआई और जेडएसआई के जो लोग हैं, इन्होंने की हुई सारी मेहनत डिजिटल रूप में सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो. यह आज का कार्यक्रम एक विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. मैं तो ये कहूंगा, 2-3 कार्यक्रम जिसका शोभन जी ने उल्लेख किया है. अभी हमारा एक दीघा में जेडएसआई का टनेल भी एक एक्वेरियम है. उस एक्वेरियम को उन्होंने हेम पांडे जी ने मेहनत करके उसको अच्छा बनाया है. मॉडर्नाइजेशन पूरा हो गया. उसके लिए ये लोगों का आकर्षण है, लेकिन आप वो समुद्र के किनारे है. थोड़ा सा टनेल एक्वेरियम में अगर रूपांतर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. इसलिए मैंने शोभन चटर्जी से मैंने बात की है कि आप देखिए उसको, आप एक प्रपोजल तैयार करिए. केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दूसरे लोग भी उसमें मिलकर एक अगर सिंगापुर में या बाकी जगह इसी तरह का एक्वेरियम, टनेल एक्वेरियम समुद्र में बनता है, तो यहां क्यों नहीं बन सकता. इस पर हम जरूर विचार करेंगे. और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यह संघ राज्य है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चल सकते हैं ऐसे सभी कामों में. चुनाव होता है, वो चुनाव के समय होता है. बाकी 5 साल हमें देश का निर्माण करना है, देश को आगे ले जाना है. और इसके लिए जो एक एक्वेरियम की कल्पना अगर अच्छा डीपीआर करो, अगर वो फिजिबल पाया जाता है, तो उसमें हम कंसीडर करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे, ताकि बंगाल में भी एक आकर्षण बनेगा और पूरे दुनिया के लोग यहाँ आ सकते हैं. ये एक काम करेंगे. दूसरा, हमारे यहाँ 16 हमारे सेंटर्स है, रीजनल सेंटर्स ज़ूलॉजी के, जेडएसआई के. लेकिन 16 में और कच्छ में जो एक ज्योग्राफी है वो अलग है. हमारे अंडमान से लेकर सोलन तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर सभी जगह अच्छे अच्छे केंद्र है. लेकिन उन अच्छे केंद्रों में गैंगटोक, सिक्किम और कच्छ, गुजरात, भुज में ये 2 नए सेंटर्स हम शुरू करेंगे. ये भी मैं कहना चाहता हूं. विरासत है कलकत्ता में, उसमें एक जेडएसआई का बहुत बड़ा हिस्सा है, म्यूजियम है, लोग देखने के लिए आते हैं. ये जेडएसआई का म्यूजियम जो है, उस म्यूजियम को अभी मॉडर्नाइज करने का काम लगभग पूरा हो गया है. 2-3 महीने और लगेंगे. 3 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा. उसका भी उद्घाटन के लिए शोभन जी, आप और मैं अब जोड़ी बन गई, तो हम ही दोनों जाकर उद्घाटन करेंगे. और तो ये करेंगे, और इस दिन मुख्यमंत्री और बाकी लोगों को भी सबको बुलाएंगे. लेकिन ये करना है. पहले तो दीघा में जो हमारा एक्वेरियम है जेडएसआई का, इस एक्वेरियम को मॉडर्नाइज किया गया है. इस एक्वेरियम को अगर टनल एक्वेरियम में रूपांतर कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे है, तो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है. तो मैंने राज्य सरकार के मंत्री को कहा है कि आप भी उसका एक डीपीआर तैयार करिए और फिर सबके पार्टनरशिप में कैसे ये कर सकते हैं अच्छा, इसका हम जरूर विचार करेंगे. क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण काम है जो जेडएसआई भी अपनी तरह से क्या कर सकती है वो भी हम तय करेंगे. सो विल टेक डिसीजन ऑन दैट वेरी सून. सेकंड इज इन भुज and in Sikkim we are starting our 2 more regional centers. In next couple of years we will actually operationalize them from next year. So do 2 new regional centers of ZSI.
और ZSI और BSI की सारी लाइब्रेरी 4,50,000 pages of treasure of what we have invented is all now digitally available to everybody. It will be linked to the e-library program of the HRD Ministry. I'll talk to Smriti Irani ji, and this will be also a pure sciences material available on the net for the students for free. So this will be a very good initiative. Therefore, cloud burst in Himalayan region is not a rare phenomena, but as we know that climate change has increased the frequency of such events, and therefore Modi government has first time after independence has allotted 100 crore rupees to carry out studies of various aspects of Himalayan ecology. And we have already started working on 27 projects in which all such disaster resilience and disaster predictions and all such things are already there. So I think with the knowledge we can mitigate the challenge, and therefore what has happened today, the concerned state government and the central concerned ministry, Home Ministry is already on the job. But this is why we need to preserve our rivers, and we should not encroach in river beds. That is the minimum, otherwise we get more losses. And therefore we have to preserve Himalaya. It's a baby mountain, and we have to take care.